وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک عظیم واقعہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے دنیا میں اللہ رب العزت نے کر دیا۔ تو بنی اسرائیل اس اللہ کی بہت بڑی قدرت کو دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے مردے کو زندہ کیا اور اس نے زندہ ہو کر کے بات بتائی کہ میرا قاتل فلان ہے، اپنے قاتل کا بتا کے پھر وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس سخت دلی کا ذکر کیا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ فرماتے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، یعنی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ذالک وحیۃ الحجارۃ، پتھروں کی طرح سخت، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے ایسے تمہارے دل سخت ہو۔ او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ او یہاں بل کے معنی، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، قسوہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز کا جو دوسرے کا اثر لینے والی ہوتی ہے، لیکن کچھ اسباب اور کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ دوسری چیز کا اثر لینا چھوڑ دے تو اس کو القاسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے تمہارے دل ایسے ہو گئے، اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دلوں نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہے اور یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو پھول پڑتے ہیں ان میں سے نہریں نکل آتی، پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی، پانی نکل آتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے پہاڑوں سے نیچے گر جاتے ہیں، یا بتو سرک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل جو تم عمل کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ پتھروں میں بھی شعور ہے، پتھروں میں بھی اللہ نے شعور رکھ دیا، پہاڑوں میں بھی شعور رکھ دیا، اور بلکہ اللہ فرماتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں نے شعور نہ رکھ دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیسے کرتی ہے؟ اس میں شعور ہے تو کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھتے کہ وہ کیسے بیان کرتی، کیسے تسبیح کرتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین ہے یا سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، درخت ہے، پہاڑ
चीज अल्लाह को सजदा करती है, शऊर है तो सजदा करती है। फरमाया हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, अल्लाह के सामने सजदा रेज होती है। वो आयात कुरान पाक में इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हमने ये कुरान आसमानों पर पेश किया, हमने ये कुरान जमीन पर पेश किया, हमने ये कुरान पहाड़ों पर पेश किया। सब ने इनकार, सब ने अल्लाह हम इसको नहीं उठा सकते, हम इसका बोझ नहीं बर्दाश्त करते। फरमाया अगर हम पहाड़ों पर इस कुरान को नाज़िल कर देते तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिया मुतसद्दियन मिन खशयतिल्लाह। अल्लाह फरमाते अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते अल्लाह के डर की वजह से। इसमें कुरान में इतनी अल्लाह ने ऐसे मनाजिर कशी की है, कुरान में क़यामत की ऐसी होलनाकियां बयान की है, पहली अक़वाम की ऐसी जो है सिफात बयान की है बुरी, जिनकी वजह से उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। तो पहाड़ इन खौफ वाले वाक़यात और खौफ वाली जो है अल्लाह के अज़ाब और आखिरत के बारे में जो सब चीज़ें अल्लाह ने बयान की है, इनको देख के पढ़ के सुन के पहाड़ नीजा रेजा हो जाते हैं। लेकिन ये इंसान का दिल है कि सुबह शाम कुरान सुनता है, कुरान पढ़ता भी है और बाद कुरान को जानते भी हैं, कुरान के मानी को भी जानते हैं, तफसीर को भी जानते हैं, उसके बावजूद धोखा देने से बाज नहीं आते, फ्रॉड करने से बाज नहीं आते, इसके बावजूद सूद खाने से बाज नहीं आते, रिश्वत लेने से बाज नहीं आते, चोरी चकारी से बाज नहीं आते। पता भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये हुक्म है, ये क्या है, ये बुरी है जिसका अल्लाह ने जिक्र किया है कि इनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा, पत्थर फट जाते हैं, उनमें से चश्मे जारी हो जाते हैं, लेकिन इंसान का दिल ऐसा सख्त है, कुरान सुनता जाएगा, आंखों से आंसू नहीं आएंगे, कुरान सुनता जाएगा, सारी जिंदगी कुरान सुना, लेकिन जैसे 50 साल पहले था, 20 साल पहले था, वैसे ही उसी जगह पे आज खड़ा। कितनों ने सुना है हमने कि नमाज खड़ी हो तो तखने के साथ तखना मिलाते, किसको नहीं पता हदीस का, इल्ला माशाल्लाह कोई एक फर्द होगा जिसको ना पता हो, सबको पता है, हमें बार बार हदीस सुनाई जाती है, लेकिन तखने से तखना क्यों नहीं मिल रहा, सबको पता है, अल्लाह अकबर, लेकिन नहीं मिल रहा। कुरान के अहकामात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, इसके बावजूद भी हम जो है उन पर अमल नहीं करते। हमारे जो रवैये पहले थे वही आज हैं, उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हो रही, जैसे इखलाक पहले था वैसे ही आज। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को नरम करे, हमारे दिलों में वो दिल पैदा करते जिन्हें कल्बे सलीम कहा जाता है, नरम दिल, जिसमें अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, लोगों की खैर खाई हो। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं है अल्लाह गाफिल जो तुम अमल करते, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह नोट कर रहा है, हर तुम्हारे की हुई हरकत को, और हत्ता के फरमाया जो तुम्हारी आंखों की जुम्बश है ना, ये किस लिए तुम इसको हरकत देते हो। बैठे बैठे मजलिस में इंसान दूसरे इंसान को आंख की जुम्बश के साथ ऐसी बात बता देता है जो जुबान से नहीं बताई जा सकती। तो अल्लाह फरमाते तुम्हारी हर एक बात को हम नोट करें, अल्लाह की तुम्हारी आंखों की जुम्बश को भी और तुम्हारे दिलों में उठने वाले वसवसात, इसके बावजूद इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, तो यही मतलब है कि वो अल्लाह को जानते ही नहीं, वो अल्लाह को पहचानते नहीं, उसे अपने परवरदिगार का तारुफ भी नहीं है कि मेरा अल्लाह कौन है। अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम तमा करते हो तो ईमान ले आएंगे, कौन, यहूदी बनी इसराइल, ये ईमान ले आएंगे, किनको ये कहा जा रहा है, मुसलमानों, सहाबा रसूल को, क्या तुम ये ख्वाहिश करते हो कि फलां फलां यहूदी ईमान ले आए तो
हमें इनकी हरकत का नहीं पता। वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह, उनमें ऐसा गिरोह भी मौजूद है जो अल्लाह के कलाम को सुनता है। सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उन्होंने उस अल्लाह के कलाम को उसमें तहरीफ कर, उसको बदल दिया, तो रात को बदल दिया गया, उसमें तहरीफ कर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औसाफ थे उनको खत्म कर दिया गया, और जो उनके दिल के मुताबिक चीजें नहीं थी उनमें तहरीफ करके कहीं अल्फाज को बदल दिया गया, कहीं माने को बदल दिया गया। अल्लाह फरमाते वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफून, इसमें तहरीफ कर, अल्लाह ने जो जिस अंदाज में वो नाज़िल किया था उस अंदाज से हटके उसको गया। आज भी बहुत सारे स्कॉलर हैं पाकिस्तान जिन्होंने एक दिन के मदारस में असातिज़ा से बैठकर दीन नहीं सीखा, लेकिन वो लोगों को दीन बताते हैं तारीफ करके, उसमें ऐसी ऐसी बातें अपनी तरफ से दाखिल कर देते हैं जिसमें औलिया अल्लाह की भी गुस्ताखी होती है, सहाबाए किराम की भी गुस्ताखियाँ होती हैं, और हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से भी बात नहीं आती। तुम्हारे सामने पिछले मिर्जा जैन मोहम्मद अली जिसका नाम है, नाम कितना खूबसूरत, लेकिन अमल इतने घटिया है। रसूलुल्लाह के बारे में इतने गुस्ताखाना अल्फाज बयान, आज हमारी जुबान से वो अल्फाज नहीं निकल सकते, इतने घटिया अल्फाज उसका वक्त, लेकिन लोग उसे स्कॉलर मान, नौजवान उसके पीछे लगे, ये बहुत अच्छी बातें जानते, वो अच्छी बातें तो उसकी सुनते हैं, जो उसकी गुस्ताखियां हैं वो भी देखो, हमेशा झूठ अच्छाई के साथ मिल के आता है, कभी झूठ अकेला नहीं आता, कभी गुनाह अकेला नहीं होता, उसके साथ अच्छाई मिला के लेट के आते हैं लोगों में मार्केट में। ये नहीं है कि गंद उठा के मार्केट में बैठ जाए बेचने के लिए, कोई नहीं लेगा, जब उसके साथ अच्छी चीजें भी रखी हो तो जो अच्छी लेने हैं उसको साथ घटिया फिर वो घटिया बिकती, वगरना घटिया नहीं बिकती। इन लोगों के पास वो घटिया चीजें बेचने के लिए कुछ अच्छी चीजें भी हैं, तो ईद सुनाते हैं ताकि लोग करीब आ जाएं, तो ईद सुना के फिर अपनी घटिया चीजें बेचना शुरू कर देते। तो इतनी बड़ी उसने गुस्ताखी की रसूल, जो अल्फाज उसने बयान किए हैं वो बयान हो ही नहीं सकते। अल्लाह उसे राज करे या उसे हदायत, सीधा रास्ता उसे दे। तो अल्लाह फरमाते फिर उसमें तहरीफ कर देते, मिन बादी मा तलू, इसके बाद उन्होंने समझा, उन्हें इल्म भी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ने इनके औसाफ को कुरान में बयान किया है, इंजील में बयान किया है, वहुम यालमून, इसको जानते हैं। और आगे इंशाअल्लाह इन्हीं के वाक़यात इंशाअल्लाह बयान होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला, कुरान और सुन्नत के मुताबिक तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना